Hello, my dear students. Today we will revise our next topic, that is multiplication. Now we will revise definition of multiplication. Multiplication is the repeated addition of a number. Multiplication is the repeated addition of a number. Now our first question, fill in. Number of earrings. Here we have to identify the number of earring. Now 2 plus 2. Okay. Now first of all 1 2 1 2. Okay. 2 are same and 2 are same. This is the pair of earrings. Okay. Now first of all, in short, pair. Two things of the same types that are used or worn. Okay. Now 2 plus 2 means 1 2 and 1 2. Okay, that's why here 2 plus 2 equals to 4. 2 2's are 4. Next line is 2 multiply 2 equals to 4. Okay students, I told you na multiplication means repeated addition, and last line is our multiply form. Okay, number 2. In front of you, two twins are given. We have to identify the leaves. Okay, number of leaves. In one side we have 1 2 3 1 2 3. Okay students, that's why 3 plus 3. Here two groups of 3 leaves are given. Okay, so one group 3 and one group 3. That's why 3 plus 3 equals to 6. Then 2 3's are 6, because here 2 wings are given and 3 leaves of each have. Okay students, हमारे सामने दो टहनियाँ हैं जिसपे 3 लीव्स लगी हैं, इसीलिए 2 आया. किस लिए? 2 हमारे पास ब्रांचेस आप कह सकते हैं, और 3 उन पे 3 लीव्स हैं इसलिए. ओके, सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज 2 मल्टीप्लाई 3. 2 किस लिए? क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं ब्रांचेस के. 2 इसलिए, और 3 उन पे लीव्स हैं इसलिए. ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6. Now our next number is 3rd. Here in front of us 1 2 3, we have 3 groups of bananas. Okay, and in each group we have 4 bananas. Okay students, I told you na, a equal addition group and multiply both are related to each other. Okay, now count 1 2 3 4 in one group, and second group 1 2 3 4, and third group 1 2 3 4. Okay, now we have to find out the number of bananas. Now 4 first group, 4 second group, and 4 third group. That's why 4 plus 4 plus 4 equals to 12. We will count. Okay, now 3. This 3 is comes from, we have 3 group, that's why. Okay, we have 3 equal groups. हमारे पास बनाना के 3 equal groups है ना, तो ये 3 वो है. And 4s, क्योंकि एक ग्रुप में 4 है, that's why we will write here 4s are 12. This is multiplication form. Okay, this is multiplication form. That's why 3 multiply 4 equals to 12. Okay, now number 4. Now we have 4 groups of mangoes. 1 2 3 4. Okay, and they are equal. In each group we have 2 mangoes. 1 2 1 2 1 2 1 2. हमारे सामने 4 ग्रुप्स हैं 2 मैंगोज के. अब हमें टोटल नंबर ऑफ मैंगोज बताने हैं.
Okay, first of all we will write 2 plus 2, 2 plus 2 plus 2. ये 2 किस लिए बेटा? क्योंकि हमारे पास 4 ग्रुप्स है बनाना के, इसलिए हमने 2 को 4 टाइम्स लिखा है. ओके, और टोटल हमने काउंट कर लिए 8. और ये 4 किस लिए? क्योंकि हमारे पास टोटल ग्रुप्स हैं 4, और 2 इसलिए क्योंकि एक ग्रुप में 2 हैं, इसलिए 2 4 2s are 8. ओके, 4 number of groups and 2's number of the mangoes is equals to 8. 4 multiplied 2 is equals to 8. Number 5. Yes students, number 5 we have 2 pairs, 2 groups. Okay beta, we have 2 groups of cherries, and in each group of cherry we have 6 cherries. हमारे पास cherries के 2 groups हैं और एक ग्रुप में 6 cherries हैं. तो हमें नंबर ऑफ cherries को पता करना है, मालूम करना है. Now we will count 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. So first of all we will write 6 plus 6, because in one group we have 6 and in other group we have 6, means we have 6 cherries in each group. 6 plus 6 you know very well, we got 12. Now 2, ये 2 किस लिए है बेटा? क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे 6 किस लिए आएगा? क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप में 6 चेरीज है. ओके, 2 6 are 12. Now in multiplication form, 2 multiply 6 equals to 12. Now question number 6. Okay students, 1 2 3 4. In front of us 4 hands are given. Okay, and you know very well we have 5 finger in each hand na? So we have to count, we have to number the finger. Okay, we have to find the total number of the fingers. So first of all 4 hands, 1 2 3 4. Okay, and each hand we have 1 2 3 4 5 finger. Okay, so we have 2 figures. हमारे पास इस समय 2 चीज़ें हैं. हमारे पास 4 hands हैं और हर एक हाथ में 5 fingers हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास 5 fingers के 4 ग्रुप्स हैं. आप ये भी कह सकते हो 5 fingers के 4 ग्रुप्स. ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 + 5 + 5 + 5. ये 5 किस लिए? क्योंकि हमारे एक हाथ में 5 फिंगर्स हैं, और ये 4 टाइम्स किस लिए? क्योंकि हमारे पास 4 हैंड्स हैं. ओके, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 20. सो अवर नेक्स्ट लाइन इज 4 5s are 20. 4 किस लिए बेटा? क्योंकि हमारे पास 4 हैंड्स हैं, और 5 किस लिए? क्योंकि हमारे पास 5 फिंगर्स हैं. 4 5s are 20. देन अवर लास्ट लाइन इज 4 multiply 5 equals to 20. Okay, yes. Now our next topic is write as multiplication. Now we will revise write as multiplication. Okay students? Yes. Now students, in front of you question is 3 plus 3 plus 3 plus 3. Okay, 4 times 3 is given. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Okay, बेटा यहाँ पे क्या है? राइट एज मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे पूछा है हमसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यानी कि साइन कौन सा आएगा आंसर में? एक्स, मल्टीप्लाई वाला. बट क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म दिया गया? प्लस वाला. बेटा यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है. क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो हम आंसर में लिखते हैं. ठीक है, राइट एज मल्टीप्लिकेशन. सो वी विल राइट साइन ऑफ मल्टीप्लाई इन आंसर. ओके, एंड इन क्वेश्चन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ
plus. Okay, so our question in plus form but our answer in multiply form. ओके बेटा, यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो 3 + 3 + 3 + 3 दिया हुआ है और आंसर में आप इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? नाउ आई विल रिवाइज, मैं आपको बताती हूँ बेटा. 4 × 3, बिकॉज यहाँ पे 4 किस लिए आए? क्योंकि हमारे पास 4 टाइम्स हमने 3 को प्लस करके लिखा है, इसलिए ये 4 नंबर से हमने उसको 3 को कितनी बार रिपीट करके लिखा है. हमने 3 को 4 टाइम्स लिखा है, ये इसलिए. और मल्टीप्लाई का साइन किस लिए? क्योंकि हमसे आंसर पूछा गया है राइट एज मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई वी विल राइट 4. ये 4 क्या बताता है कि हमारा जो 3 है वो 4 टाइम आया है और 3 वो नंबर जो हमने 4 टाइम लिखा है. ओके, नेक्स्ट 5. अब बेटा यहाँ पे एक सिंगल डिजिट 5 है, सिंगल डिजिट, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई क्या 5, यानी कि हमारा 5 एक बार ही लिखना है. ओके, नंबर 3 0 + 0 + 0. ओके, रिमेंबर वन थिंग, क्वेश्चन है राइट एज मल्टीप्लिकेशन, so in answer we will write sign of multiply, that is x. Okay students, so first of all we will write 3 किस लिए बेटा? क्योंकि हमारी 0 3 बार आई है. 3 × 0. ओके, दिस इज द आंसर. ये 3 किस लिए आया? 3 इसलिए आया क्योंकि हमें 0 3 बार दी गई है एंड sign of multiplication then 0. Okay, now next question 2 + 2 + 2 + 2. Okay, so we will first of all we will count how many time we have 2. 1 2 3 4. हमारा 2 कितनी बार आया बेटा? 4 टाइम्स. ओके, इसलिए हमने 4 को पहले लिखा एंड मल्टीप्लिकेशन साइन ऑफ मल्टीप्लाई देन 2. इसका मतलब है हमने 2 को 4 टाइम प्लस के फॉर्म में दिया था, उसको हमने मल्टीप्लाई में हम ऐसे लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट 4 + 4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट हाउ मेनी टाइम्स 4 आर रिपीटेड. 1 2. ओके, सो वी विल राइट 2 देन साइन ऑफ मल्टीप्लाई देन 4. ओके, क्योंकि 4 को हमने 2 टाइम हमने लिखा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 + 3 + 3 + 3 + 3. नाउ काउंट 3 1 2 3 4 5. बेटा हमारा 3 कितनी बार आया? 5 टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 5 × 3, क्योंकि हमारा 3 कितनी बार आया? 5 टाइम आया. सो वी विल राइट 5 × 3. नेक्स्ट 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6. Same process. First of all we will count how many times 6 is given. 1 2 3 4 5 6. Now 6 sign of multiplication then 6. It means 6 को हमने 6 टाइम लिखा है. ओके, देन 7 सिंगल टाइम 7 है, सो वी विल राइट 1 × 7. इस 1 का मतलब है कि हमारा 7 केवल एक बार गिवन है. ओके, और मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि हमें मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9. Same process we will follow. Now first of all we will count how many times 9 is given. 1 2 3 4 5 6 7 8. So first of all we will write 8, then sign of multiplication, then 9. It means हमने 9 को
8 टाइम प्लस के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया था। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5. Same process we will repeat. We will count 1 2 3 4 5 6 7. ओके बेटा, सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, देन साइन ऑफ मल्टीप्लाई एंड देन 5. इट मीन्स हमने 5 को 7 टाइम लिखा था। ओके, और किस फॉर्म में? प्लस फॉर्म में। ओके, क्योंकि हम इस आंसर को मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रहे हैं इसलिए। नाउ नेक्स्ट, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10. Same process, 1 2 3 4 5 6, then 6. Sign of multiply, that is x. मल्टीप्लाई का साइन बेटा मैंने बताया था x होता है ना, we will write x और मल्टीप्लाई साइन. देन 10. इट मीन्स हमने 10 को 6 टाइम प्लस फॉर्म में लिखा था जो क्वेश्चन था, और इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 × 10. इसका मतलब है 6 टाइम हमने 10 को लिखा। ओके, या 10 टाइम 6 को लिखा। नो बेटा, इसका मतलब है हमने 10 को 6 टाइम लिखा। ओके, 6 का मतलब है हमने 6 टाइम क्या लिखा? 10. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8. Oops, lots of 8s are written. Okay, how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay students, so how many time we have 9? We have 8 9 time. How many time we have 8? 9 time. Okay, so first of all we will write 9. Our question is write as multiplication, then multiplication sign, and 8, because our question digit is 8. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 8 को 9 टाइम रिपीट करके लिखा था। ओके, यस। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट एज एडिशन फॉर्म। ओके बेटा, राइट एज एडिशन फॉर्म बेटा। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट एज एडिशन। स्टूडेंट्स, दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन का उल्टा प्रोसेस है। ओके, हाउ, कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 × 7। देखो बेटा, इसमें लिखा है राइट एज एडिशन, एंड यू नो वेरी वेल ऐड का साइन क्या होता है? प्लस, और क्वेश्चन है मल्टीप्लाई फॉर्म में। बेटा ये दोनों की पहचान ये होती है, राइट एज मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन प्लस में दिया होता है और मल्टीप्लाई का साइन हमें यूज करना होता है, और राइट एज एडिशन में हमें मल्टीप्लाई में क्वेश्चन दिया हुआ होता है और ऐड का साइन हमें यूज करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। 4 × 7। बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 4 है हमें इस 4 टाइम्स 7 को लिखना है। ओके, और विद द हेल्प ऑफ साइन प्लस। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। 7 + 7 + 7 + 7। ओके, इसका मतलब ये है कि हमने 7 को 4 टाइम लिखा है प्लस के साइन के साथ। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 × 5। अवर क्वेश्चन इज राइट एज एडिशन, सो वी विल राइट 5 + 5। ओके, हमने क्या किया? 5 को 2 टाइम लिखा प्लस के साइन के साथ में। ओके, नेक्स्ट इज 5 × 2। ओके, एंड वी विल आंसर इज एडिशन फॉर्म। ठीक है, हमें ऐड वाले साइन के साथ हमें आंसर देना है। सो हमें क्या करना है? 5 टाइम प्लस को लिखना है, 5 टाइम 2 को लिखना है प्लस के साइन के साथ। सो स्टार्ट 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ओके बेटा, यहाँ पे हमने 2 को लिखा 5 टाइम विद साइन ऑफ प्लस। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 × 9। इसका मतलब है हमें 9 को
5 टाइम लिखना है प्लस के साइन के साथ. ओके, वी हैव टू राइट 9 5 times with the sign of plus. Let's start. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Okay, next question. 6 multiply 8. It means we will write 8 6 times with the help of sign plus. Okay, हमें 8 को 6 टाइम लिखना है प्लस के साइन के साथ, बिकॉज हमारा क्वेश्चन है राइट एज एडिशन फॉर्म. हमें मल्टीप्लाई साइन गिवन है और हमें प्लस का साइन यूज करना है. हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन होगा राइट एज मल्टीप्लिकेशन, और जो हमें ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको चेंज करना है किसको, मल्टीप्लिकेशन में. प्लस का साइन गिवन होगा क्वेश्चन में और हमें आंसर में लिखना होगा मल्टीप्लाई का साइन. और क्या बेटा, राइट एज एडिशन साइन होगा मल्टीप्लाई का और आंसर में हम लिखना होगा प्लस का साइन. ये ध्यान रखना है हमेशा. नंबर नेक्स्ट, 3 multiply 0. Here we will write 0 3 times with sign of plus. Okay, so let's start. 0 plus 0 plus 0. ओके, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन था वो हमने चेंज कर दिया प्लस के साइन के साथ. नेक्स्ट, 7 multiply 1. It means we will write 1 7 times with the sign plus. Okay, so let's write 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Okay, our last is 8 multiply 2. It means here we will write 2 8 times. जो पहले डिजिट गिवन होता है हमें पीछे वाले डिजिट को उतने टाइम्स लिखना होता है. ओके बेटा, यहाँ पर हमें 2 को 8 टाइम्स लिखना है, तो 8 आगे गिवन है और 2 पीछे गिवन है. इसका मतलब है हमें 2 को 8 टाइम्स लिखना है और साइन कौन सा आएगा, प्लस का. ओके स्टूडेंट्स, so we will write 2 plus 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 2. Okay students, remember one more time. Students, question है write as multiplication. तो बेटा इसमें प्लस के साइन के साथ क्वेश्चन आता है और हमें मल्टीप्लाई के साइन के साथ उसको लिखना होता है. और राइट एज एडिशन फॉर्म में क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई के साइन के साथ और हमें प्लस का फॉर्म लिखना होता है, प्लस के साइन के साथ लिखना होता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.